इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, शहीद भगत सिंह जैसे सभी महान हस्तियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। I would also like to make special mention of our great warriors of Jharkhand, our beloved Bhagwan Birsa Munda ji, Amar Shahid Sidhu Kanu ji, Baba Tilka Manji ji, Chand Bhairav ji, Sheikh Bihari ji, Sisters Ulo Janu ji, Veer Buddha Bhagat ji, Jatra Tana Bhagat ji, Pandey Ganpat Rai ji, Tikait Umarao ji, Vishwanath Sakdev ji, and Nilambar Pidambar ji, who fought great battles against the British for protection of our land and our dignity. इस अवसर पे मैं झारखंड के महान वीरों जैसे भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद सिद्धू कान्हू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, शेख भिखारी, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, विश्वनाथ शाहदेव एवं नीलांबर पीताम्बर जैसे अन्य शहीदों का विशेष उल्लेख करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी मातृभूमि व स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ी। On this Independence Day, I warmly greet the jawans of our strong armed forces and the police forces, and pay my tribute to those brave soldiers who sacrificed their lives to protect the country borders, and I pay the tribute to the police forces who laid their lives in maintaining the peace of the state. Jharkhand। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं हमारे देश के सशस्त्र एवं पुलिस बल को हार्दिक बधाई देता हूं तथा उन वीर सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। मैं पुलिस बल को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति शांति व्यवस्था बनाने हेतु दी है। Since independence, our country has made progress in all fields. India's identity today on the world map is a successful democratic country. We have seen many ups and downs in the journey of our development, but together we have successfully overcome every obstacle and difficulty that came in the way of our great motherland's development. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। विश्व के मानचित्र पर आज भारत की पहचान एक सफल लोकतांत्रिक देश के रूप में है। विकास की अपनी इस यात्रा में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमने मिलकर देश के विकास के मार्ग में आने वाली हर बाधा व मुश्किल का सफलतापूर्वक सामना किया है। Our state Jharkhand is progressing and developing steadily. Our governments are determined to ensure that the development reaches the last person living in the remotest area of Jharkhand. It is the result of our continuous and persistent efforts that Jharkhand has established its distinct identity in many fields at the national and the international level. हमारा राज्य झारखंड निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि झारखंड के सुदूर इलाकों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड ने कई क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। Along with agriculture, rural development, education and health, our governments are focuses on industrial and tourism development in the state. Jharkhand's performance has improved in cleanliness and innovation, while the state has also achieved remarkable success in reducing malnutrition, anemia and infant mortality. Roadways, railways and airways have expanded like anything. Use of information technology has increased in every field, due to which benefits of government, both central and state schemes are reaching the targeted beneficiary efficiently and transparently. हमारी सरकार राज्य में कृषि, ग्रामीण विकास,
शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ औद्योगिक और पर्यटन विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। स्वच्छता तथा नवाचार में झारखंड का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। वहीं कुपोषण, एनीमिया और शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी राज्य ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। सड़क मार्ग, रेलवे और वायु मार्ग का विस्तार हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ा है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित व्यक्ति तक पारदर्शी व दक्ष तरीके से पहुंचाने में सफलता मिली है। Our government has restored the old pension scheme, thereby benefiting lakhs of state government employees. The facility of compensatory leave for policemen has been restored in the state. A cashless health insurance scheme is approved for the state government's working employees and the retired employees. Under Sarvajan Pension Yojana, a pension is provided to the needy people. Jharkhand Andolankaris, their dependents and relatives are being given pensions and other facilities. Under the Aapki Yojana, Aapki Sarkar, Aapke Dawar program, the government is making sincere efforts to ensure that the benefits of development schemes reach the common citizens at their doorsteps. Our government is determined to achieve the goal of development and social justice. हमारी सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया गया है, जिससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभ हुआ है। राज्य के पुलिस कर्मियों को क्षतिपूरक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत जरूरतमंदों को पेंशन दी जा रही है। झारखंड आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण कर उनके आश्रितों और परिजनों को भी पेंशन और सम्मान दिया जा रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार राज्य के कोने कोने तक विकास योजनाओं का लाभ आम नागरिकों के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार सामाजिक न्याय के साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। Saravani Mela is currently going on with lakhs of devotees from across the country and abroad are reaching to Devghar and Pasuginath for darshan and to offer holy water to Baba Baidyanath. Our government ensures that all possible help and facilities are extended to the pilgrims. Regular flights are operating from Devghar to Calcutta and Delhi, due to which Devghar is accessible from other parts of the country with an ease, convenient and fast transport system. Under the Prasad scheme, various constructions works have been executed for the beautification of Sivaganga and Jalsar in Baidyanath Dham, Devghar, and for the convenience of Kavidiyas and Kavidiya Path. अभी श्रावणी मेला चल रहा है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ के दर्शन एवं जलार्पण हेतु देवघर एवं बासुकीनाथ आ रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की हर सुविधा व सहायता का ध्यान रखा जा रहा है। देवघर से कोलकाता एवं दिल्ली के लिए नियमित उड़ान संचालित हो रही है, जिससे देवघर देश के दूसरों हिस्सों से सुगम एवं तीव्र यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है। प्रसाद योजना अंतर्गत वैद्यनाथ धाम, देवघर में शिवगंगा एवं जलसार का सौंदर्यीकरण तथा कांवरिया पथ में कांवरियों की सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य कराया गया है। The pace of developments in our Santali Bargana has increased. Regional connectivity scheme Udan Ude Desh Ka Aam Nagrik was launched by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Under this scheme, the route for direct flight service from Dumka to Calcutta, Patna and Ranchi is approved. For this, the work of the upgradation of our Dumka airport is complete and the necessary steps are in the process of obtaining the aerodrome license. संथाल परगना में विकास की गति तेज हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत दुमका से कोलकाता, पटना तथा रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा हेतु रूट स्वीकृत किया गया है। इस हेतु दुमका हवाई अड्डा के उन्नयन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा
एरोड्रोम लाइसेंस हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। Proposal to start commercial pilot's license CPL training up to the multi-engine rating level at Dumka has been sent to the DGCA. Government of India. This training school will provide 15 youths from the scheduled tribes, scheduled castes, minorities and backward classes of the state type rating training on Airbus 320 level aircraft, including CPL training on 100% scholarship each year. The state government will spend 61 lakh rupees on each training. दुमका में मल्टी इंजन रेटिंग स्तर तक का कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव डीजीसीए भारत सरकार को भेज दिया गया है। इसमें राज्य की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के कुल 15 युवाओं को 100% छात्रवृत्ति पर सीपीएल प्रशिक्षण सहित एयरबस 320 स्तर के वायुयान पर टाइप रेटिंग प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षु पर लगभग ₹61 लाख का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। We all know unemployment and migration have been a big problem in Jharkhand. We are taking forward the process of recruitment against the vacant government posts. The state government has sent a requisition to Jharkhand Staff Selection Commission for appointment to about 38,000 vacant posts, out of which advertisements for appointments to the tune of 36,000 posts are published. झारखंड में बेरोजगारी एवं पलायन एक गंभीर समस्या रही है। हम रिक्त सरकार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा लगभग 38,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें से 36,000 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। To provide employment to the local youth within the state and prevent their migration, our government has notified the employment of local candidates in the private sector of Jharkhand State Act 2021. Relevant rules for this are also notified in 2022. Under this, every employer in the private sector will employ at least 75% local persons for all the vacant posts having a maximum monthly salary of ₹40,000. A new portal is launched to successfully implement the act, in which a facility is available to enter the details of employers and personnel working under the employer. स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2022 में इससे संबंधित नियमावली भी गठित की जा चुकी है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र में प्रत्येक नियोक्ता 40,000 रुपए तक के मासिक वेतन वाले पदों के कुल रिक्ति के 75% पद पर स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजित करेगा। अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर नियोजकों के निबंधन तथा नियोजक के अधीन कार्यरत कर्मियों की विवरणी प्रविष्ट करने की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री सारथी योजना has been launched to connect the youth of the state with self-employment through skill training. Within the scheme, under the Birsa sub-scheme, lakhs of youth of Jharkhand are being provided skill training in Birsa centers at the block level. They are also given employment incentive allowances and the transport allowances. राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़े जाने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बिरसा उप योजना के तहत झारखंड के लाखों युवाओं को प्रखंड स्तर पर बिरसा केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं परिवहन भत्ता भी दिया जा रहा है। The Mukhyamantri Rozgar Srijan Yojana is being implemented to provide benefits of loans and grants on the loans at ease and cheaper rates to the scheduled tribes, scheduled castes, minorities, backward classes, Divyang youths of the state to start their own business and be self-employed. From 2022, provisions related to mortgage, guarantor and the deduction of the subsidy amount from the loan have been simplified to ensure
that the scheme's benefit reach the maximum number of beneficiaries on the most transparent way. राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग युवाओं को स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चालू की गई है। वर्ष 2022 में लाभुकों के हितों के लिए इस योजना अंतर्गत गारंटर बनने, मॉर्गेज करने तथा सब्सिडी की राशि ऋण से प्रारंभ में ही कटौती करने की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है, ताकि अधिकतम लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। We all know education is the foundation of the development of any society. Our central and state governments are doing remarkably well on the education field. 88 Eklavya schools and 80 Chief Minister's schools of excellence have been started by the both governments to provide better and quality education to our children. These schools are affiliated with CBSE syllabus and examination is being organized at the district level for enrollment. Children will be imparted education in these schools on the lines of reputed private schools. शिक्षा ही राज्य के विकास की नींव है। बच्चों को बेहतर एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा 88 एकलव्य विद्यालय एवं 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रारंभ किया गया है। ये विद्यालय सीबीएसई से संबद्ध है और नामांकन हेतु जिला स्तर पर परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों की तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। Guruji Student Credit Card Scheme has been launched to provide financial assistance to those students of the state who are deprived of getting higher education after passing 10th and 12th class due to financial constraints. Through the CM Sardi scheme and Eklavya training scheme, free training and coaching facilities will be provided to such students. राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना स्वीकृत की गई है। सीएम सारथी योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। The government is providing opportunity to students belonging to the scheduled tribes, scheduled caste, minorities and backward classes to pursue higher education abroad under the Marang Gomke Jaipal Singh Munda Overseas Scholarship Scheme and Sevening Marang Gomke Jaipal Singh Munda Overseas Scholarship Scheme. मराठ गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना तथा शिवलिंग मराठ गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सरकार उपलब्ध करा रही है। Financial assistance is being provided to the students belonging to the weaker and backward classes by the state government under the pre-matriculation and post-matriculation scholarship schemes. Along with this, action is also being taken to construct multi-story hostels with the state-of-the-art facilities and model library facilities will also be available in these hostels for the students. कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधा युक्त बहुमंजिला छात्रावास उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। इन छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। Our Jharkhand is the country's leading state in the silk production, in which the Santal Bargana regions plays a major role. In order to increase the production of Tasar silk qualitatively and quantitatively in the financial year, 6,250 silk growers are undergoing training in advanced silk rearing techniques. In the last year, 872 metric tons of raw silk were produced.
झारखंड रेशम उत्पादन में देश का प्रमुख एवं अग्रणी राज्य रहा है, जिसमें संथाल परगना क्षेत्र की अहम भूमिका है। तसर रेशम के उत्पादन में गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,250 रेशम उत्पादकों को उन्नत कीट पालन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2022 से इसमें 872 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया। Apart from this, the traditional skill of bamboo craft can be found in the Santhal Barganas region. Under the special component scheme, a total of 1,200 bamboo artisans have been provided training in bamboo handicrafts. The weavers of the Dumka area are also being benefited through the Mega Handloom Cluster. इसके अलावा संथाल परगना क्षेत्र में पारंपरिक रूप से बांस शिल्प का हुनर पाया जाता है। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा बांस प्रक्षेत्र में कुल 1200 बांस शिल्पियों को विशेष घटक योजना अंतर्गत बांस हस्तशिल्प का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मेगा हैंडलूम क्लस्टर के द्वारा भी दुमका प्रक्षेत्र के बुनकरों को लाभान्वित किया जा रहा है। More than 70% of our Jharkhand population lives in villages. Multi-pronged efforts are being made by our government to strengthen the rural economy. Many public welfare schemes are being run by the government for the development of agriculture and allied sectors. In this regard, farmers are getting empowered through various schemes like Integrated Birsa Gram Kam Krishik Patsala Yojana, Mukhyamantri Pasadhan Vikas Yojana, Seed Distribution Scheme, providing working capital to LAMPS and PACS. झारखंड की 70% से अधिक आबादी गांवों में रहती है। हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को विकास हेतु सरकार द्वारा कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस दिशा में समेकित बिरसा ग्राम सकृषक पाठशाला योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, बीज वितरण योजना, लैम्प्स और पैक्स को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता तथा केसीसी के माध्यम से किसानों को सक्षम बनाया जा रहा है। These schemes are benefiting the Kisans through Kisan Credit Card. In the event of any disaster, farmers are provided with assistance through the Chief Minister's Drought Relief Scheme and the Jharkhand State Crop Relief Scheme. Small and marginal farmers have received support from the Jharkhand Agricultural Loan Waiver Scheme as well as the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, through which each Kisan is getting 6,000 rupees per year in 3 installments as financial assistance from the central government. विपदा की स्थिति में सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना तथा झारखंड राज्य फसल राहत योजना के द्वारा किसानों को सहायता पहुंचाई जा रही है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से छोटे एवं सीमांत किसानों को संबल मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को प्रति वर्ष ₹6,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। Through convergence with Manrega, our government has launched 4 important schemes, namely Birsa Harit Gram Yojana, Nilambar Pitambar Jal Samvriti Yojana, Veer Sagid Potoho Khel Vikas Yojana and Didi Badi Yojana. All these above schemes are being successfully implemented in the entire state, including our Santhal Bargana region. With the implementation of these schemes, on the one hand, the income of the farmers have increased, and the other, water and soil conservation has also been ensured. हमारी सरकार द्वारा मनरेगा से अभिसरण के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण योजनाएं यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना तथा दीदी बाड़ी योजना को लागू किया गया है। उक्त सभी योजनाएं संथाल परगना सहित पूरे राज्य में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के लागू किए जाने से जहां एक तरफ किसानों की आय में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में जल एवं मृदा संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है। In the current Kharif season,
We all know the rainfall up to the last month has been reported to be below normal. The state government is continuously monitoring the situation and appropriate decisions will be taken soon. वर्तमान खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा होने की सूचना है। राज्य सरकार द्वारा इस पर सतत निगरानी रखी जा रही है और शीघ्र ही समुचित निर्णय लिए जाएंगे। Manrega plays an essential role in the rural economy. The state government is running schemes in all villages against the target of 900 lakh manpower days under Manrega. A total amount of rupees 1,611 crore has been spent, creating a total of 470 lakh manpower days. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा मनरेगा अंतर्गत कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मनरेगा अंतर्गत 900 लाख मानव दिवस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक कुल 470 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 1611 करोड़ रुपए राशि का व्यय किया जा चुका है। With the aim of making women empowerment and self-reliant, Didi Badi, Didi Bagya schemes are being implemented under Manrega. They are also being trained as horticulturists, and as a result, the participation of women in the creation of manpower working days has increased to about 48%. महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मनरेगा अंतर्गत दीदी बाड़ी एवं दीदी बगिया योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्हें बागवानी विशेषज्ञ के रूप में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। फलस्वरूप मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी लगभग 48% हो गई है। The government has envisaged mega lift irrigation projects to minimize displacement, submergence and land acquisition in irrigation projects. Masalya Raneshwar mega lift scheme is under implementation in the Dumka districts of the Santal Bargana region, through which irrigations will be provided to 22,000 hectares in our Dumka district. सिंचाई परियोजनाओं में विस्थापन, भू क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। संथाल परगना क्षेत्र के दुमका जिला अंतर्गत मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिससे दुमका जिला में 22,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। Clean and pollution-free energy is the need of the hour. Jharkhand Solar Energy Policy 2022 has been launched by our government to make Jharkhand a leader in the production of clean energy. Greedy district of our state is targeted as the solar city. It is a matter of pride for the Jharkhand and its people of Jharkhand that the government has approved the proposal to set up Jamshedpur, the country's first hydrogen fuel industry in the private sector. Along with this, Jharkhand electric vehicle policy and Jharkhand ethanol production promotion policy are also notified. स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा समय की मांग है। हमारी सरकार द्वारा झारखंड को प्रदूषण मुक्त ऊर्जा में अग्रणी बनाने के लिए झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई है। राज्य के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह झारखंड एवं झारखंड वासियों के लिए गर्व की बात है कि जमशेदपुर में निजी क्षेत्र अंतर्गत देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित होने जा रहा है। इसके साथ साथ झारखंड विद्युत वाहन नीति 2022 एवं झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू की गई है। Jharkhand has a distinct identity in the field of sports. The players of Jharkhand have proved their talent at the national and international levels in many sports competitions. The government is trying to create a conducive sports ecosystem in the country. Under the Jharkhand sports policy, every possible help is provided to the players. Sports grounds are developed at panchayat and block level. Talented players are identified and provided with appropriate platforms through the Johar Khiladi portal. खेल के क्षेत्र में झारखंड की अलग पहचान रही है। झारखंड के खिलाड़ियों ने कई खेल स्पर्धाओं में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।
सरकार द्वारा राज्य में खेल का बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड खेल नीति 2022 के अंतर्गत खिलाड़ियों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। जोहार खिलाड़ी पोर्टल के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। Due to the state government's effort, the educational level is improving gradually. This year also, the result of the secondary and higher secondary board examinations in the state has been encouraging. More than 95% of the students have been successful in the matriculation board examination. In order to overcome the shortage of teachers in the state-run primary schools, steps are on for the appointment of 26,000 assistant teachers. राज्य सरकार के प्रयासों से शिक्षा के स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। इस वर्ष भी राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में 95% से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। राजकीय के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गई है। To make higher education better and more accessible, the Jharkhand Open University and Pandit Raghunath Murmu Tribal University have been established. उच्च शिक्षा को बेहतर और सर्वसुलभ बनाने के लिए झारखंड खुला विश्वविद्यालय एवं पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। Our government is constantly trying to provide better health facilities to the state people. Availability of equipment, medicines and doctors is being ensured in every primary health centers, community health centers and the district hospitals to improve health care in the state. The establishment of AIIMS by the central government at Devhar has provided better health care facilities for the people of Santal Bargana region. राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के उन्नयन हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पतालों में उपकरणों, दवाओं एवं चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। देवघर में एम्स की स्थापना से संथाल परगना क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। Keeping in the view of the importance of roads in the development of the state, in the year 2022-23, the government duly inaugurated 32 roads and bridge schemes worth about 1,560 crores, and the foundation stones were laid for the 104 road and bridge schemes costing about 1,640 crores. राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 2022 से इसमें लगभग 1560 करोड़ रुपए की राशि के 32 पथ एवं पुल योजनाओं का विधिवत उद्घाटन तथा लगभग 1640 करोड़ रुपए की राशि के 104 पथ एवं पुल योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। Our government is emphasizing women empowerment and the girl child education. For this purpose, the state government is successfully implementing Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana and the Chief Minister Kanyadan Yojana. Under the Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana, more than 7 lakh adolescent girls benefited, while more than 10,000 newly wedded couples got financial assistance under Chief Minister Kanyadan Yojana. हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा पर जोर दे रही है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से 7 लाख से अधिक किशोरियों को लाभान्वित किया गया है। वहीं 10,000 से अधिक नव विवाहिता को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। Our governments are determined to eradicate malnutrition from the state. Efforts are on the strengthen Anganwadi centers in the state. Children up to 6 years of age, pregnant women and lactating mothers of the state are being regularly provided nutritional supplements at these centers.
राज्य से कुपोषण के उन्मूलन हेतु हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों को संरचनात्मक तथा संसाधनात्मक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं को उच्च पोषक तत्वों से युक्त पूरक पोषाहार नियमित रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। Along with infrastructure development, our government is also proactively implementing beneficiary-oriented schemes. Pension is provided under Sarvajan Pension Yojana to all the senior citizens, disabled and the needy women of the state. So far, more than 12 lakh additional beneficiaries have been covered under this scheme. विकास के साथ साथ हमारी सरकार लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन भी पूरी तत्परता के साथ कर रही है। राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और निसहाय महिलाओं को सर्वजन पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान किया जा रहा है। अब तक लगभग 12 लाख से अधिक अतिरिक्त लाभुकों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। The central and the state governments are making efforts to ensure that the benefits of the development and welfare schemes reach the last person living in the remotest corner of our state. I am confident that the government will successfully overcome the development challenges with the people's active participation and constructive cooperation. Let us all pledge today to make concerted efforts to build a prosperous, happy and healthy Jharkhand. केंद्र और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है कि विकास व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुझे विश्वास है कि जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से विकास के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सफलता प्राप्त होगी। आइए आज हम सभी एक समृद्ध, खुशहाल व स्वस्थ झारखंड का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का संकल्प लें। I once again convey my best wishes and congratulations to all of you on the occasion of this Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jharkhand. Bharat is ek and Bharat will be ek forever. Dhanyabad. Johar. मैं एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय का आपके आशीर्वचनों के लिए। झारखंड हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, विकास के नए आयाम कर रहा है। प्रगति का प्रवाह कभी रुकने नहीं पाएगा। लाखों कुर्बानियों का गवाह युद्ध तिरंगा यूं ही लहराएगा। ये संकल्प गहराता हुआ एक बार पुनः धन्यवाद, आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। और अब समय है हमारे कई जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी आश्रित पत्नियों को सम्मानित करने का, इसके साथ ही साथ अन्य इस आज के राजकीय समारोह में उपस्थित हमारे प्रतिभागियों को सम्मानित करने का। इस कड़ी में स्वतंत्रता सेनानी की आश्रित पत्नी को शॉल देकर माननीय राज्यपाल महोदय सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमती चंद्रावती देवी, पति स्वर्गीय धनेश्वर मंडल। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान श्रीमती चंद्रावती देवी, पति स्वर्गीय धनेश्वर मंडल। बहुत सहृदयता के साथ माननीय राज्यपाल स्वतंत्रता सेनानियों की इन धर्मपत्नियों को, आश्रित पत्नियों को ये शॉल प्रदान कर उनका इस मंच पर सम्मान करते हुए जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्रीमती पर्वतिया देवी, पति स्वर्गीय पत्रू राय। बहुत ये है श्रीमती चंद्रावती देवी। और अगला आमंत्रण बहुत सम्मान के साथ मैं आगे आमंत्रित कर रही हूं। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा यह सम्मान दिया जा रहा है श्रीमती पर्वतिया देवी, पति स्वर्गीय पत्रू राय, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका अदा की। उनके आश्रित पत्नी को यह सम्मान श्रीमती सरोतिया देवी, पति स्वर्गीय दशरथ राय। और अब मैं आमंत्रण देना चाहूंगी राष्ट्रगान में सम्मिलित बालिकाएं +2 राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर,
और अनुसूचित जाति उच्च विद्यालय कलराडी, आप आगे आएंगे। आपके टीम लीडर राष्ट्रगान में जो सम्मिलित बच्चियां थी, आप टीम लीडर को मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ। +2 राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, अनुसूचित जाति उच्च विद्यालय की बच्चियां आप आगे आएंगी। और उसके बाद बैंड पार्टी पुलिस एकेडमी हजारीबाग का बैंड जिसने मीठी धुन छेड़ी थी, आरक्षी 102 सत्यनारायण दास टीम लीडर थे, इनके नेतृत्व कर रहे थे इस बैंड पार्टी का। ये है वो बच्चियां, उनके टीम लीडर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रगान यहां पर बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रगान की प्रस्तुति की थी आज के इस अवसर पर। और अब अगला सम्मान पुलिस एकेडमी हजारी बैंड पार्टी जिसकी टीम लीडर हैं आरक्षी संख्या 102 सत्यनारायण दास। ये बच्चियों का सम्मान यहां पर राष्ट्रगान में शामिल बच्चियां। और अब पुलिस की मीठी धुन बिखेर कर हम सबके अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा बिखेरने वाले उस बैंड पार्टी का सम्मान यहां पर। और अब मैं आमंत्रण देना चाहती हूं आज की इस परेड में जो टुकड़ियां शामिल हुई थी। तीसरे नंबर पर है एनसीसी दुमका, उनके टीम लीडर प्लाटून कमांडर मीनार खातून दौड़ते हुए चले आएंगे। दूसरे स्थान पर IRB 8 गोड्डा की टुकड़ी रही है, महिला पुलिस अवर निरीक्षक प्रियंका कुमारी, आपको मैं आमंत्रण देना चाहती हूं। और पहले स्थान पर SSB 35 बटालियन विजयपुर दुमका की टुकड़ी उप निरीक्षक कुलदीप यादव जी, आपको मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूं, दौड़ते हुए चले आइए। तीसरे स्थान पर रही है NCC दुमका की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है मीनार खातून। उसके बाद दूसरे स्थान पर IRB 8 गोड्डा, नेतृत्व महिला पुलिस अवर निरीक्षक प्रियंका कुमारी। माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा आपको ये सम्मान यहां दिया जाना है। आमंत्रण देना चाहती हूं, इस मंच पर चले आएंगे आप। SSB 35 बटालियन विजयपुर दुमका उप निरीक्षक कुलदीप यादव जो कि इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। आमंत्रण आपको और तालियां होती रहनी चाहिए। और उसके बाद इन टुकड़ियों के टीम लीडर प्लाटून कमांडर के बाद में मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहूंगी आज इस पूरी परेड का, जिन्होंने फर्स्ट इन कमांड में थे, जिन्होंने पूरी परेड का नेतृत्व किया, परीक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक जामताड़ा श्री राकेश सिंह। और सेकंड इन कमांड में परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक गुमला श्री प्रदीप प्रणव। ये तीसरे स्थान पर सबसे पहले आमंत्रण एनसीसी दुमका मीनार खातून, मंच पर आमंत्रण आपको। जोरदार तालियां इनकी हौसला अफजाई के लिए होनी चाहिए। आज के इस अवसर पर आपकी बेहतर भागीदारी और बेहतर आपने जो अनुशासन यहां पर दिखाया है, आपकी शानदार उपस्थिति के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान। अगला आमंत्रण IRB 8 गोड्डा, महिला पुलिस अवर निरीक्षक प्रियंका कुमारी, आगे आएंगे आप। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की देश की ये बालाएं हर जगह जमीन से लेकर आसमान तक अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। SSB 35 बटालियन विजयपुर दुमका की टुकड़ी, इनका नेतृत्व कर रहे थे उप निरीक्षक कुलदीप यादव। मंच पर आप बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रण देना चाहती हूं। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा आज के इस ऐतिहासिक राजकीय समारोह में झारखंड की राजधानी दुमका के इस मंच पर यह सम्मान, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहती हूं बखूबी इस पूरी परेड का नेतृत्व करने वाले फर्स्ट इन कमांड परेड कमांडर परीक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक जामताड़ा श्री राकेश सिंह। मंच पर सम्मान के साथ आपको आमंत्रण। आपकी बुलंद आवाज इन फिजाओं में जब तैर रही थी, सबके रगों में दौड़ता लहू
देशभक्ति की एक नई बयां महसूस कर रहा था। अगला आमंत्रण सेकंड इन कमांड इस पूरी आज की जो परेड थी उसके दूसरे स्थान पर सेकंड इन कमांड के रूप में थे परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक गुमला श्री प्रदीप प्रणव। जोरदार तालियों के साथ आपका आमंत्रण यहां पर। और अब मैं आमंत्रण देना चाहूंगी फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल दुमका आयुष्मान भारत के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन सरकारी संस्थान में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु फूलो झानो मेडिकल